Assalamu alaikum dear viewers. In this video we are going to read the poem Mercy by William Shakespeare. First of all we will see what mercy is. Acts of mercy are giving of alms, care for the sick and refraining from harming or punishing enemies and people in one's power. Acts of mercy, mercy means रहम, हमदर्दी. यानी acts of mercy में क्या आता है? रहम के कामों में क्या आता है? गिविंग ऑफ आर्म्स, खैरात देना, सदका देना, केयर फॉर द सिक, बीमारों की देखभाल करना, एंड रेफ्रेनिंग फ्रॉम हार्मिंग और पनिशिंग एनिमीज एंड पीपल इन वनस पावर. और जब कोई ताकत में होगा, यानी जब कोई रूल करता हो, जब कोई हुकूमत में होगा, पीपल इन पावर आर द पीपल हु आर द रूलर्स, द किंग्स. यानी जब वो अपने दुश्मनों को या जिन्होंने कोई जुर्म किया हो उनको तकलीफ़ पहुँचाने के बजाय या उनको सज़ा देने के बजाय उनको माफ़ करे, उन पर रहम करें, उससे बाज रहें, वो भी रहम कहलाता है. दिस वर्च्यू हैज़ बीन लेड डाउन इन ऑल रिलीजन्स. और ये जो खूबी है, ये जो उसूल है, ये तमाम मज़ाहिब में है. The nature and importance of mercy are summed up in the following extract from the Merchant of Venice. और रहम की क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या नेचर है, उसको सम अप किया गया है इस एक्सट्रैक्ट में. जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है शेक्सपियर की एक प्ले से, उसकी एक कॉमेडी से, जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस. तो नाउ लेट अस सी द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम. This has been taken from The Merchant of Venice by William Shakespeare with following characters. The characters in this play are Antonio, Bassanio, Shylock and Portia. So what happens? This Antonio has borrowed money from Shylock. Shylock was a money lender and he has lended money to Antonio on a condition. The condition was that if Antonio would not be able to repay his debt on time to Shylock, then Shylock had all the rights to take 1 pound of flesh from Antonio's body. यानी एंटोनियो ने पैसे उधार लिए थे शेलॉक से इस शर्त पर कि अगर एंटोनियो पैसे वक्त पर वापस न कर सकता तो शेलॉक को पूरा हक था कि वो एंटोनियो के जिस्म से 1 पाउंड फ्लैश, 1 पाउंड गोश्त ले सकता था. And Antonio in the end was not able to repay his debt and Shylock went to the court. When they went to the court, Portia, probably the wife of Antonio, she gave a speech on mercy before the court. उसने कोर्ट के सामने मर्सी पे एक स्पीच दे दी, ठीक है. And William Shakespeare is describing that speech here in this poem Mercy. Now let's move to the stanza number 1. The quality of mercy is not strained, it dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blessed him that gives and him that takes. In this stanza, the poet has used some archaic words such as dropped and blessed. Dropped is an archaic word. Archaic means obsolete, which are old-fashioned words. And here it means drops. D-R-O-P-P-S, right? Drops. And blessed का मतलब है blesses, right? The quality of mercy is not strained. जो रहम की खूबी है ये किसी के अंदर फोर्स से नहीं लाई जा सकती है. अंडरस्टैंड? यानी रहम की खूबी, रहम की क्वालिटी ये किसी के अंदर फोर्स से नहीं आ जाती है. द वर्च्यू ऑफ मर्सी, द क्वालिटी ऑफ मर्सी, द एट्रीब्यूट ऑफ मर्सी डज नॉट कम विद फोर्स इन एनीवन्स हार्ट, इन एनीबडी. अंडरस्टैंड? It dropped as the gentle rain. It refers to the mercy. It dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath. ये इसी तरह से एक इंसान के दिल में आ जाती है जिस तरह से आसमान से. Heaven here means
sky. ये इसी तरह से आ जाती है एक इंसान के दिल में जिस तरह से बारिश आसमान से आ जाती है. It emerges in the heart of a person like the rain which comes from heaven without any external force. Understand? It is twice blessed. It is twice blessed. That means the mercy has two benefits. इसके दो फायदे हैं. It blessed him that gives, यानी it blesses him that gives. ये उसके लिए भी blessing है, ये उसको भी bless करती है, उसको भी उसके लिए भी खुशी की बात होती है. ये उसको भी यानी खुशी देती है, उसके लिए भी बरकत वाली बात होती है जो रहम करता है किसी के ऊपर. एंड हिम दैट टेक्स, और उस पर भी जिस पे रहम किया जाता है. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स मूव टू द स्टेंजा नंबर 2. इट इज माई टेस्ट इन द माई टेस्ट. दिस इज इट इज माई टेस्ट इन द माई टेस्ट. यानी जो मर्सी होती है, it carries a lot of importance, it carries much significance when it is shown by the people in power, when it is shown by the rulers, when it is shown by the kings. यानी जब बादशाह लोग, जब हुक्मरान लोग, जब वो लोग जो ताकत में होंगे, जब वो रहम दिखाते हैं, जब वो किसी पर रहम करते हैं, तो उस रहम की बहुत अहमियत होती है. वो रहम बहुत ताकतवर रहम होती है. It becomes the throned monarch better than his crown. It becomes become का यहाँ पे मतलब है suit करना, befit करना, right? That means it befits, it suits the throned monarch. Throned monarch means the monarch in power. यानी वो बादशाह जो तख्त पे बैठा हो, जो पावर में हो. तो it suits that throned monarch better than his crown. Crown symbolizes the majestic power of the king. यानी क्राउन क्या दिखाता है यहाँ पे? क्या सिम्बलाइज करता है? पावर ऑफ द किंग. यानी ये जो मर्सी है ये सूट करती है ज़्यादा एक बादशाह को. किससे? किसके बरकस? उसके क्राउन के बरकस, उसके ताज के बरकस, उसके ताकत के बरकस. उसके ताकत के मुकाबले में मर्सी उसको ज़्यादा सूट करती है, ज़्यादा बिफिट करती है. His scepter shows the force of temporal power, the attribute of and majesty. His scepter का मतलब होता है a royal wand. A royal wand, a stick which was carried by the rulers, which was carried by the kings in their hands to show their power and majesty. यानी एक छड़ी होती जो बादशाह लोग अपने हाथों में लेते हैं ताकत दिखाने के लिए, रोब दिखाने के लिए, उसको कहते हैं सेप्टर. His scepter shows the force of temporal power. उसका जो ये आसा होता है, उसकी जो ये छड़ी होती है, ये क्या दिखाती है? टेम्पोरल पावर, यानी दुनियाई ताकत, टेम्पररी पावर, which is not permanent. The attribute of and majesty. और ये किसकी खूबी है? ये सेप्टर हाथ में लेना, ये छड़ी हाथ में लेना, ये किसकी खूबी है? टू ऑ एंड मैजेस्टी, यानी अपना रूप दिखाने के लिए, अपना दबदबा दिखाने की खूबी है, ये अपना ताकत दिखाने की ये खूबी है. ठीक है? Now let's move to the stanza number 3. Wherein doth sit the dread and fear of kings, but mercy is above this scepter's sway. It is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God Himself. Wherein doth sit the dread and fear of kings. Wherein, यहाँ पे wherein का मतलब क्या है? This carrying scepter in the hand by the rulers. Wherein doth का मतलब है does. ठीक है? This is one more archaic word. Wherein doth sit the dread and fear of kings. उसी छड़ी में क्या होता है? ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, यानी बादशाहों की खौफ व दहशत उसी छड़ी में होती है. यानी जो बादशाह लोग रहम करने के बरकस अपने हाथों में ये जो छड़ी लेते हैं, ये क्या दिखाती है? यही दिखाती है उनका खौफ व दहशत. बट मर्सी इज अबो दिस सेप्टर्स वे. सेप्टर्स वे मीन्स आशाशाही. ठीक है? आशाशाही, आशा लेके हुक्मरानी करना.
बट मर्सी इज़ अबो दिस चैप्टर्स वे, लेकिन जो मर्सी है, जो रहम है, ये इस आशाशाही से बढ़कर है। ये इस सेप्टर को हाथ में लेके, उस छड़ी को हाथ, उस डंडे को हाथ में लेके हुकूमत करने से बढ़कर है, उससे बालातर है। ठीक है। इट इज़ एंथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स। एंथ्रोन्ड का मतलब है प्लेस्ड, यानी उसकी जगह। इट इज़ एंथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स। उस रहम की जगह कहाँ पे है? इन द हार्ट ऑफ किंग्स, बादशाहों के दिलों में। बादशाहों के दिलों में ये बसती है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। और ये जो मर्सी है, ये खुदा की खूबी है। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ गॉड। अंडरस्टैंड? नाउ दिस poem ends with this couplet: and earthly power doth then show likest gods when mercy seasons justice. And earthly power doth means does, and earthly power doth then show likest gods. और earthly power means दुनियाई हुक्मरान। दुनियाई हुक्मरानों की जो ये हुकूमतें हैं, ये फिर गॉड जैसी दिखती हैं कब? ये खुदा वाली ताकत दिखती है कब? when mercy seasons just, जब रहम और इंसाफ जुड़ जाता है, जब रहम के साथ साथ इंसाफ भी किया जाए, तो ये खुदा वाली खूबी बन जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस poem very well. Thank you very much.